Namaskar, welcome to Ek Samvad at Arunim Ankuran. 29th August is National Sports Day. To celebrate this special day, we are in conversation with Dr. Robin Simon. He is a lecturer in physical education at VNIT Nagpur. Thank you so much for joining us, sir. It's a pleasure to have you here. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. A word about Arunim Ankuran. This is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunim Ankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, each person can create an impact, and that's what inspires us to keep going. National Sports Day is celebrated every year on 29th August to commemorate the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand. Since its recognition as a national event in 2012, it has also served as the platform for the Fit India movement, which was launched in 2019. The 2025 campaign Ek Ghanta Khel Ke Maidan Mein encourages citizens to spend at least 60 minutes a day in physical activity aiming to combat lifestyle diseases and promote mental well-being across all age groups. Our guest, Dr. Robin Simon, is a lecturer in physical education at VNIT Nagpur, BSc, Masters in Physical Education, NET, PhD. His specialization is in badminton. His areas of interest include periodization and training methods. Sports teach us discipline, teamwork, resilience. So this 29th August, let's celebrate the importance of fitness, the thrill of sports, and the power it brings to life. Warm welcome to you, sir, and thank you for being here. Namaskar, ma'am. Namaskar, Thank you. sir. Thank you. Right. The most elementary basic question first. Please tell us what physical fitness is and how many types are there? Okay. Before I talk on this topic, what you have asked me to do, आपने स्टार्टिंग में बोला कि 60 मिनट 1 घंटा खेल के मैदान पर और सब आपके लिए हेल्प होगा. मेरा ये मानना है कि 30 to 40 minutes 3 to 4 days in a week, that will take care of everything. All right. So kind of physical fitness is a kind of investment. हम इसको बाद में टॉपिक में बात करेंगे. So let us come back to the topic. I mean, जो आपने कहा है कि physical fitness क्या होता है basically. तो physical fitness there are different definitions. जो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है या जो रेनॉन्ड फिजिकल एजुकेशनिस्ट है, उनके हिसाब से फिजिकल फिटनेस की आप देखोगे अलग अलग तरीके की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी. लेकिन फिर भी एक जनरल जो फिजिकल फिटनेस का डेफिनेशन है, फिजिकल फिटनेस इज एन एबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी विथ ईज, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस विदाउट अनड्यू फटीग. और बिना थकान की ये सारी एक्टिविटी आप बड़े इजीली कर लो और उसके बावजूद भी आपके पास में कुछ एनर्जी ऐसे रह जाती है जो कि आपकी जो इमरजेंसी सिचुएशन अगर आती है तो आप उसको इजीली आप उस चीज को एग्जीक्यूट कर पाओ. दिस इज जनरल फिजिकल फिटनेस डेफिनेशन. We can differentiate physical fitness component in two categories. One is health related physical fitness component and sports specific physical fitness component. So what are health related physical fitness components? One is cardiovascular fitness, second is muscular strength, third is muscular endurance, fourth is flexibility, and last one is body composition. Body composition में आप बोल सकते हैं कि total body fat analysis, BMI, waist hip ratio and chest expansion. Whereas sports related physical fitness में आप बोल पाओगे कि 5 कंपोनेंट, इसमें 3 कंपोनेंट तो सेम है. वन इज स्ट्रेंथ, दैट इज मस्कुलर स्ट्रेंथ, देन मस्कुलर एंड्योरेंस, थर्ड वन इज स्पीड, फोर्थ वन इज एजिलिटी एंड फिफ्थ वन इज फ्लेक्सिबिलिटी. अब चूंकि हम फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट स्पोर्ट्समैन की बात पे हम ज्यादा बात करेंगे तो ये बेटर होगा कि हमें 5 कंपोनेंट के सब कंपोनेंट को हम समझ ले. मस्कुलर एंड्योरेंस या हम पहले बात करें मस्कुलर स्ट्रेंथ, तो मस्कुलर स्ट्रेंथ को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सेकंड इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, थर्ड वन इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. इनको और हमको और अच्छे से समझना है तो ये बेटर होगा कि हम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन समझ ले. सो स्ट्रेंथ इज बेसिकली इट इज एन एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी.
ठीक है। अगर मैं 1 kg का डंबल्स उठा रहा हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ उस प्रोपोर्शन में बढ़ेगी। अब रेगुलर में साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग करके इफ माई मसल्स आर ट्रेन एंड आई एम एबल टू लिफ्ट 2 kg ऑफ डंबल, 3 kg ऑफ डंबल, तो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है एंड आई हैव ट्रेन माई मसल्स अकॉर्डिंगली। दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब कितना हम वेट उठा सकते हैं। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मतलब जो जिसमें एक्सप्लोजन की जरूरत है। अगर हम सिंपल एग्जांपल समझे, फास्ट बॉलर, हार्ड पावरफुल स्मैश, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जावलिन थ्रो, डिस्कस, तो जहाँ पे एक्सप्लोजन की जरूरत है वहां पे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। थर्ड वन इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, जहाँ पे 800 मीटर रन जो एथलीट की आप बात करो या जिम्नास्ट की बात करो, वहां पे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कंपोनेंट डोमिनेटिंग होता है। अब इसमें एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। इस कंपोनेंट को समझने के लिए हमको एंड्योरेंस जो फिटनेस का सेकंड कंपोनेंट है उसकी डेफिनेशन पहले समझ लेंगे हम। एंड्योरेंस, इट इज एन एबिलिटी टू वर्क अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। थकने की कंडीशन में आप कितना देर काम कर सकते हो या दौड़ सकते हो, वो आपका हो गया एंड्योरेंस। अब मैं थक गया हूं, मैं दौड़ रहा हूं, उसके बाद मैं नहीं दौड़ सकता, वो मेरी हाईएस्ट लिमिट हो गई एंड्योरेंस की, राइट। एक समय आता है कि हम नहीं दौड़ सकते, वो एंड्योरेंस का लिमिट हो गया। तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस ये दोनों कंपोनेंट का एक मिक्सचर बोल सकते हो। एंड्योरेंस को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक मतलब एनी फिजिकल एक्टिविटी जहां आपको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत महसूस हो रही है, वो होगी एरोबिक एंड्योरेंस। जैसे जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, डांसिंग, जहां आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ रही है, वो होगी एरोबिक एक्टिविटी। एनारोबिक मतलब जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, वो एनारोबिक हो गया। वॉकिंग कर रहे हैं लेकिन ब्रिस्क वॉकिंग नहीं है, हाउस होल्ड एक्टिविटी हो गया। इनफैक्ट 100 मीटर इवेंट भी एक एनारोबिक, 100-200 मीटर इवेंट भी एक एनारोबिक एक्टिविटी है। आप जब देखोगे एथलीट ऑन योर मार्क सेट एंड गो, जब उसका इवेंट कंप्लीट होता है तब उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है। राइट। द थर्ड कंपोनेंट विच इज रिलेटेड विद द एथलीट और जो इंटेंस फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट की हम बात करें, वो हो गया एजिलिटी, कैपेसिटी टू वर्क, कैपेसिटी टू रन एट एनी मोमेंट एट एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में कभी भी दौड़ना, वो हो गया एजिलिटी। उसको हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी भी बोलते हैं, हिंदी में हम उसको चपलता बोल सकते हैं, या हम उसको एजाइल मतलब स्विफ्टनेस बोल सकते हैं, वो की एजिलिटी। फोर्थ है स्पीड, कितना फास्ट दौड़ सकते हो, एंड फिफ्थ वन इज फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ अ जॉइंट। राइट। Wow, that is a lot of information, sir. Thank you for sharing. और एक एथलीट को कंप्लीट एथलीट बनने के लिए 5 कंपोनेंट पे काम करना जरूरी है। कोई भी कंपोनेंट को छोड़ नहीं सकता कि मैं इस पे छोड़ दूं तो मैं एथलीट बन जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। So, I was just about to ask you. So, talk to us a little about when someone starts training. What is the process? Right. Like, how do you approach all of them together, or how exactly does it progress? सी ट्रेनिंग अगर आपको किसी करना है, से फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक एज अ कोच, या अगर किसी कोच की बात करनी है तो उसको ट्रेनिंग किसी का प्लान बनाना है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले डिसाइड करना जरूरी है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, राइट। आई मीन देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग, उसका मल्टीलैटरल ट्रेनिंग कंपोनेंट डेवलपमेंट होना जरूरी है, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक होना जरूरी है, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे उसको ध्यान देना जरूरी है, टेक्निकल एस्पेक्ट पे ध्यान देना जरूरी है। अब उसके ये तो हो गए इसके ऑब्जेक्टिव जो हम जनरली बात कर रहे हैं, लेकिन एक कोच को कोई भी ट्रेनिंग का डिजाइन करना है उसके ग्रुप के लिए या इंडिविजुअल के लिए, तो उसको अपने कुछ प्रिंसिपल्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। राइट। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। ओके। अब से फॉर एग्जांपल मैं जनरल फिजिकल फिटनेस ट्रेनर हूं और मेरे पास में से फॉर एग्जांपल फुटबॉल के भी बच्चे हैं, बैडमिंटन वाले भी हैं, लॉन टेनिस वाले भी है, स्विमिंग वाले भी है। तो ये हर प्लेयर की अलग रिक्वायरमेंट है क्योंकि उनका स्पोर्ट्स अलग है।
अब उसमें तो मुझे ये देखना है कि मेरा फिटनेस जो ट्रेनिंग प्लान है वो एक स्विमर के हिसाब से है, या अगर हम बात करें सिर्फ एक बहुत जनरल हम बात करें, अगर मैं एथलीट को ट्रेन कर रहा हूँ जिसमें मेरे पास में 100 मीटर स्प्रिंटर भी है और लॉन्ग डिस्टेंस रनर भी है, हाँ हाँ। तो मेरा फिटनेस प्रोग्राम 100 मीटर स्प्रिंटर का अलग होगा, लॉन्ग डिस्टेंस का अलग होगा। दिस इज अबाउट द स्पेशलाइजेशन। ओके। सेकंड प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। अब इसमें क्या होगा कि जब मैं ट्रेनिंग प्लान बना रहा हूँ, तो मेरे जो ट्रेनीज है, मुझे हर प्लेयर का एक प्रोफाइल बनाना जरूरी है। वो मेल है, फीमेल है, छोटा बच्चा है, बड़ा है, उसका हिस्ट्री कितना है, वेदर द जो मेरे राइट पास राइट। ट्रेनी है वो पहले से ट्रेंड है या नया बच्चा है, ओके। वो नेशनल लेवल का प्लेयर है या स्टेट लेवल का प्लेयर है, हम्म। राइट, सो दैट उनके साथ में इनजस्टिस कभी ना हो। अगर मैंने से फॉर एग्जांपल एक नेशनल लेवल का प्लेयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल को दे दिया तो वो कोप अप नहीं कर पाएगा। वही मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का फिटनेस प्लान में नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूं तो उसके साथ भी जस्टिस नहीं होगा। सो ट्रू। मेल का फीमेल का अलग प्लान होगा, मेल का अलग होगा। दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। यस। द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग इज वेराइटी। जैसे अगर हम बात करें कि हम्म हम रोज अगर एक एक चीज खाना खाए तो हम बोर हो जाते हैं, राइट, हम्म तो ट्रेनिंग में वेराइटी होना भी जरूरी है। हम्म। वेराइटी में जैसे हमने बात किया है ना कि अभी एंडोरेंस का प्लान अलग होगा, स्ट्रेंथ का अलग होगा, स्पीड का अलग होगा, एजिलिटी का अलग होगा, उसमें अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल अलग होंगे, ओके। राइट। हाँ। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, बैडमिंटन प्लेयर का है तो उसमें डोमिनेटिंग फैक्टर है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग फैक्टर है। हम एंडोरेंस की बात करें तो फंडामेंटली उसका एरोबिक कैपेसिटी ज्यादा होना है, लेकिन ऑन कोर्ट उसकी एनोरेबिक कैपेसिटी की डिमांड ज्यादा है, राइट राइट। एजिलिटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो जब कोच एक ट्रेनिंग प्लान बनाता है तो उसमें उसको सारी वैरायटी डालना जरूरी है। यस। नहीं तो अगर एक ही प्लान रेगुलर वही करते रहेगा तो क्या होगा, मोनोटोनस प्लान होगा, उसको इंजरीज होगी, हाँ। और उसमें लॉस प्लेयर का बहुत ज्यादा है। मतलब मोनोटोनस होने के कारण से, सेम ट्रेनिंग प्लान होने से एक ही उसके मसल्स पे लोड आएगा और उसको इंजरीज होना चालू हो जाएगा। तो वेराइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ लोड. अब इसमें लोडिंग एंड ओवरलोडिंग, मतलब जब तक आप प्लेयर पे लोड नहीं बढ़ाओगे उसका डेवलपमेंट भी नहीं होगा. Right. अब लोड बनाते समय भी उसका लोड बहुत प्रोग्रेसिव होना चाहिए. प्रोग्रेसिव इन द सेंस कि ग्रेजुअली लोड का जो है ना उसमें अलग अलग मेथड है, स्टेप मेथड होता है. धीरे धीरे उसका जब तभी वो मसल्स में अडाप्टेशन होगा. वेदर कोई भी फिटनेस कंपोनेंट का ट्रेनिंग बना रहे हो, चाहे वो स्ट्रेंथ का हो या एंडुरेंस का हो, उसका लोड बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज होता है. Okay. द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम. वॉल्यूम जब इंटेंसिटी जब उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी कम होती है, और जैसे जब टूर्नामेंट के पास जाते हैं वॉल्यूम कम होता है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है. तो कोच को बहुत सारे प्रिंसिपल पे ध्यान देना पड़ता है, तभी उसका एक फुल प्रूफ ट्रेनिंग प्लान बनेगा और वो बच्चे के लिए इफेक्टिव होगा. That is so important. राइट. So we have spoken about so many different aspects of training. Sir, talk to us Right. a little bit about how physical fitness can be measured. What are some of the measures? ओके ओके. सी, जब एक कोच या ट्रेनर अपना फिटनेस प्लान बनाता है तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि पीरियडिकली उसका इवैल्यूएशन करे. Yes. Hmm. राइट. नहीं तो उसने उसको ट्रेनिंग लोड दे दिया है, उसको ये भी नहीं पता है कि उसका इफेक्ट एडवर्स हो रहा है या पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है. सो इट हैज टू बी मॉनिटर्ड, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड. Hmm. राइट. Yes. अब इनिशियल स्टेज में उसका फिटनेस, जब एक कोई प्लेयर या एथलीट कोच के पास जाता है तो कोच का सबसे पहला काम है कि उसका उस लेवल पे उसका एनालिसिस कर ले. Okay. राइट. से फॉर एग्जांपल अगर हमने एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनर को, एक एथलीट का हमने फिटनेस एनालिसिस करना है और उसके बाद में जाता है, उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग कराना है, तो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस रनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी एरोबिक कैपेसिटी एंड कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस. Okay. तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के मामले में से फॉर एग्जांपल कोच को देयर आर डिफरेंट पल्स रेट्स अ कोच मस्ट अंडरस्टैंड, और उसका काम है कि उसने प्लेयर को भी समझा के देना चाहिए. हाँ. अब उसमें जैसे हम एक नॉर्मल पल्स पर्सन है तो हमको पता है कि रेस्ट हमारा जो नॉर्मल पल्स रेट 72 बीट्स टू 100 जाता है. दैट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. उसके बहुत सारे फैक्टर है कि वो पल्स रेट क्यों वेरी करता है. दिस इज वन काइंड ऑफ पल्स रेट. Right. द सेकेंड सेट इज मैक्सिमम हार्ट रेट. Hmm. वो कोच को और प्लेयर को भी पता होना जरूरी कि उसका मैक्सिमम हार्ट रेट कितना जा सकता है. Okay. अब ये इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, 220 माइनस योर एज, दैट इज योर मैक्सिमम हार्ट रेट. Okay. Hmm. अगर एक कोच एक 20 इयर्स एथलीट को ट्रेनिंग दे रहा है तो उसको पता होना चाहिए उसका मैक्सिमम हार्ट रेट 200 बीट्स पर मिनट जाएगा. Okay. Okay. दिस इज द सेकेंड फैक्टर अ कोच मस्ट नो, और उसका काम है कि प्लेयर को भी बता के दे. Okay. थर्ड है एक्सरसाइज हार्ट रेट या टारगेट हार्ट रेट. हम बोलते हैं कि उसको कितना लोड उसको देना है जिसका उसका हार्ट रेट कहाँ तक ले जा सकता है, मतलब उसको उसके इंटेंसिटी और वॉल्यूम डिसाइड करना है Right. कि Right. कितने राउंड दौड़ेगा वो, कितना देर दौड़ेगा वो. और नॉर्मली जब प्लेयर दौड़ता है तो कोच का काम है कि पल्स रेट मेजर करे. पल्स रेट भी मेजर करने का तो उसको तरीका आना चाहिए कि कहाँ पे इसको कैसे पल्स रेट लेना चाहिए, ये उसको कोच को आना जरूरी है. Right. तभी वो जब उसका ट्रेनिंग शेड्यूल कंप्लीट, से फॉर एग्जांपल उसने उसको से 20 मिनट रन बोला है, 20 मिनट दौड़ने के बाद में उसका पल्स रेट कितना हुआ है, दैट ही मस्ट बी नो मेजर, ही शुड बी एबल टू मेजर आल्सो. Hmm. अब ये हो गया उसका, ये हो गया एक तो हमने नॉर्मल पल्स रेट देखा है, Hmm. एक मैक्सिमम हार्ट रेट देखा है. थर्ड हम बात करेंगे रेस्टिंग पल्स रेट. रेस्टिंग पल्स रेट क्या होता है कि जब हम पूरी रेस्ट में है, and the best time to measure a resting pulse rate is early morning when you get up from the bed. Okay. जब आपकी रात में पूरी नींद हो चुकी है, बॉडी को पूरी रेस्ट मिल चुकी है, तब आप पल्स रेट नोट कीजिएगा. तो जो ट्रेन्ड एथलीट है, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस रनर या जो एरोबिक फिटनेस जहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर है, उनका रेस्टिंग पल्स रेट हमेशा कम होगा. Okay. Why is that? क्योंकि इट इज रिलेटेड विद द, आई मीन से एथलीट हार्ट, हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट. उसमें एथलीट हार्ट वाला एक एस्पेक्ट है, उसको हम कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे. जितना आप ट्रेनिंग करोगे आपकी हार्ट की आई मीन एफिशिएंसी बढ़ती है, जिससे आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ता है. और एक आई मीन से
एक हार्ट बीट में वो ज़्यादा से ज़्यादा पल्सेट आई मीन ब्लड रिलीज करता है, तो दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो ये बहुत सारे कारण से उसका रेस्टिंग पल्सेट कम होता है। Okay. So this is the second factor which will decide their cardiac means exercise heart rate. Hmm. उसका एक फॉर्मूला होता है, आई मीन मैक्सिमम हार्ट रेट माइनस रेस्टिंग पल्स रेट इनटू इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, दिस डिसाइड द एक्सरसाइज हार्ट रेट। से Okay. फॉर एग्जांपल 20 इयर्स एथलीट के लिए मैक्सिमम हार्ट रेट होगा 200 220 माइनस एज। Hmm. अब मान लीजिए कि वो ट्रेन्ड एथलीट है, उसका रेस्टिंग पल्स रेट आता है 50 बीट्स पर मिनट। Hmm. So 200 minus 50 that will be 170 beats per minute. Hmm. कोच डिसाइड करेगा उसकी इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज कितनी है, 70% है, 75% है, 80% है। दिस वैरीज उसका कौन से पीरियड में वो ट्रेनिंग कर रहा है। Okay. अगर उसका ट्रेनिंग प्रिपरेटरी पीरियड है, कंपटीशन पीरियड में है, तो उसका ट्रेनिंग उसका इंटेंसिटी वैरी करेगी। Hmm. तो 220 minus 20 that is 200 minus 50 is 70 into 70%, this decides, this is the exercise heart rate. Okay. Wow. तो ये एक इवैल्यूएशन टेक्निक होती है जो एक कोच को पता होना जरूरी होता है कि उसको कितना ट्रेनिंग लोड देना है, कितना इंटेंसिटी देना है, राइट। एक दूसरा पैरामीटर है एरोबिक कैपेसिटी डिसाइड करने का, वो होता है 12 मिनट रन और वॉक टेस्ट, Hmm. कूपर टेस्ट और VO2 मैक्स टेस्ट। ये बहुत स्टैंडर्ड टेस्ट है। Hmm. ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है जिससे आप कार्डियोवास्कुलर फिटनेस डिसाइड कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी डिसाइड करना है, सिट एंड रीच टेस्ट एक बॉक्स होता है जिससे आप हैमस्ट्रिंग की, हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी डिसाइड कर सकते हो। Hmm. 1 मिनट बेंट नी सिटअप्स है जिससे आप एब्डोमिनल स्ट्रेंथ डिसाइड कर सकते हो। Hmm. 1 मिनट पुशअप टेस्ट है जिससे आप शोल्डर की स्ट्रेंथ डिसाइड कर सकते हो। Hmm. स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है जिससे आप लोअर बॉडी की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आप डिसाइड कर सकते हो। मेडिसिन बॉल थ्रो है जिससे आप एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ऑफ शोल्डर मसल एंड अपर बॉडी की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ डिसाइड कर सकते हो। देर आर डिफरेंट डायनामोमीटर्स, ग्रिप स्ट्रेंथ डायनामोमीटर, बैक स्ट्रेंथ डायनामोमीटर, तो इससे आप उनकी ग्रिप की, लोअर बैक की, लेग की स्ट्रेंथ डिसाइड कर सकते हो। तो ये कोच को हमेशा एक डायरी बना के पीरियोडिकली उस अपने एथलीट का असेसमेंट करना बहुत जरूरी होता है। और ये कोच ने प्लेयर को भी बता के देना चाहिए। जितना प्लेयर को एजुकेट करेगा तो लर्निंग एंड टीचिंग बिकम्स मोर इजियर। Yes. So while we are discussing this, this question came to my mind. We've been reading कि बहुत सारे लोग जिम में जाके they are exercising vigorously and then suddenly they have a heart attack. And राइट राइट। so what you're talking, I think, is there a connection between what you were talking about and this? They're doing it beyond the capacity. Is it possible? हाँ, उसमें देखिए अभी जो रिसेंटली जो हुआ है कोविड के बाद से, उस पर हम शायद से कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन जनरल जो भी आप अगर जिम जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना वर्कआउट कर रहे हैं। आपको हाँ, रेगुलर असेसमेंट करना जरूरी है। right. एंड सिंपल, बहुत सिंपल है, आप अपना रेस्टिंग पल्स मेजर करो। ऑफकोर्स आपको एक डॉक्टर की एडवाइस लेना जरूरी है। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है या कुछ कार्डियोवास्कुलर डिजीज की कुछ प्रॉब्लम है, अगर मेडिकेशन ले रहे हो तो वो से फिजियोलॉजिकल मेडिकल बैकग्राउंड अलग होता है, लेकिन इसके अलावा भी आपने आपका रेगुलर असेसमेंट करना जरूरी होता है। आपने कितना ट्रेनिंग लोड लेना है, Hmm. और आपने उसका हमेशा एक चार्ट बना के करना चाहिए कि वीकली, Hmm. आई मीन से फोर्टनाइट, 15 दिन के लिए, 1 महीने का, बहुत ग्रेजुअली आपने अपना ट्रेनिंग लोड बढ़ाना चाहिए, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लोग एब्रप्टली अपना जाते हैं Hmm. और कोई उनका प्लान नहीं होता है, कभी वो बहुत ज्यादा कभी कम, तो अडेप्टेशन नहीं होता है उनका। Right. हाँ, अडेप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अडेप्टेशन तभी होगा कि जब बहुत ग्रेजुअली साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग लोड बढ़ाओगे, और एक लेवल तक उसको मेंटेन करना है। जब तक अडेप्टेशन नहीं होगा उसका ट्रेनिंग लोड नहीं बढ़ा सकते हो आप। Right. So important. When a new trainee comes to the coach, what are some of या the most basic things that a coach should do before they start training? ट्रेंड कैसा है ना कि कोच आ रहे हैं, बच्चों को एडमिट करा रहे हैं and वो चल रहा है काम उनका कोचिंग वाला। लेकिन अगर एक सही में एक प्लेयर बनाने की बात है कोच के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, तो उसने कुछ फंडामेंटल टेस्ट कर लेना चाहिए। हाँ. रनिंग, गेट, गेट रनिंग स्टाइल कैसा है उसका, Hmm. थ्रोइंग एबिलिटी कैसी है,
there are basic motor ability component now. I mean, I think this is more relevant what we can talk on, right? There are basic motor ability component जो कि बच्चों में डेवलप नहीं हुआ है, हाँ, जो आपने हमने बचपन में किया है, लाइक right, रनिंग, climbing, pulling, pushing, throwing, kicking, jumping, catching, punting. yes, हाँ, These are basic motor ability component which has to be trained in the kids. जब तक ये कंपोनेंट डेवलप नहीं होंगे कोई भी बच्चा कोई भी एथलीट नहीं बन सकता है. तो पहला टारगेट कोच का होना चाहिए कि वो पहले उसको एथलीट बनाए. तो बेसिक मोटर एबिलिटी कंपोनेंट लाइक रनिंग, दौड़ने का उसमें स्टाइल है तो रनर बन जाएगा. थ्रोइंग, थ्रोइंग आता है तो बॉलर बन जाएगा, लॉन टेनिस की सर्विस करेगा, बैडमिंटन के स्मैश टॉस मार लेगा, right, राइट. कैचिंग रहा तो उसकी एजिलिटी, आई हैंड लेग कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा. हम्म, तो ये टेस्ट नॉर्मली एक कोच ने पहले कर लेना चाहिए. उसको सिंपल दौड़ा ले, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करा ले. अगर उसमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, उसके अगर फास्ट मसल फाइबर ज्यादा डोमिनेटिंग है, डेफिनेटली उसकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ अच्छी होगी. right, तो बच्चा डेफिनेटली एक फुटबॉलर, एक बैडमिंटन प्लेयर या क्रिकेटर या जहां पे भी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की जरूरत है वो बच्चा अच्छा करेगा. अगर वो नहीं है तो उसको वहां तक पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. तो रनिंग स्टाइल, थ्रोइंग एक्शन, कैचिंग, बेसिक उसको टेस्ट करा ले. और अगर उसको प्लेयर बनाना भी है तो पहले इन कंपोनेंट पे काम करे तो बाद में वो स्किल डेवलप करे. और मेरे ख्याल से तो 8 साल तक के बच्चों को पेरेंट ने इन्हीं स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में नहीं डालना चाहिए. सेंड देम टू अनऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स जहाँ पे लीडम गेम्स होते हैं ना, कि पिट्टू खिलाना, लगोरी कराना, वो आइस एंड वाटर, पकड़ा पकड़ी, कैचिंग, लंगड़ी, ये जितना कराए बच्चों के कंपोनेंट डेवलप होंगे. बाद में 8 साल के बाद बच्चे का ग्रोथ कभी भी हो जाएगा. दिस इज नॉर्मली अ कोच एंड अ पेरेंट मस्ट लुक इनटू इट. दिस इज वेरी सीरियस इशू इन द सोसाइटी. एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सर फॉर एवरीवन कि बच्चों को अनऑर्गेनाइज्ड प्ले where they can do these things, running and jumping and all of those things which you said, these components. राइट So राइट राइट राइट. this is about the children, but the fitness component applies to everyone. What about people who have never exercised in their life but are now dealing with certain issues and want to start? Would you like to say something to them? या डेफिनेटली. से फॉर एग्जांपल आज मेरी एज अगर जितनी भी है, से फॉर एग्जांपल मेरी एज 50 है और मैं आज एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, राइट. सो आफ्टर 55 इयर्स मेरी जो मसल की स्ट्रेंथ तो कम हो ही रही है जेनेटिकली. तो 55 इयर्स में मैं आई विल बी लुकिंग लाइक अ 55 इयर्स ओल्ड Yes. normally, right? Say biologically and chronologically also. But if I start doing exercise at the age of 50 years, जितनी भी मेरी body allow करती है, when I achieve the age of 55 years, I might look like a 45 years old person, Right. right? Not only through my appearance, but also मेरे muscles की strength भी maintained है, मेरी एरोबिक कैपेसिटी बढ़ गई है, मेरे कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बढ़ा है, मेरा सेल्फ एस्टीम बढ़ा है, खुद के प्रति देखने का नजरिया, राइट. मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ मेरे शोल्डर की, मेरे क्वाड्रिसेप्स की, मेरी हैमस्ट्रिंग की, मेरे एब्डोमेन की, बैक की, एंड ऑफ कोर्स इंटरनल फिजियोलॉजिकल सिस्टम, मेरी एरोबिक कैपेसिटी बढ़ गई है. मुझे बाकी जो बेसिक प्रॉब्लम है, बीपी, शुगर, वो नहीं है. सो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ for the people, those who never participate in any kind of physical activity. I think rather I say it is a kind of investment. अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करो तो आपको बीपी, शुगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, वरी सब शुरू हो जाएगा और फिर आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे. इट इज बेटर टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 30 to 40 minutes 3 to 4 days in a week on cardiovascular fitness. और अगर आप एफोर्ड कर सकते हो, आपने स्ट्रेंथनिंग भी करना है, एरोबिक एक्टिविटी भी करना है, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है. हमको जो जो ले पर्सन, उनको एजिलिटी और स्पीड पे काम करने की जरूरत नहीं, बट ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एरोबिक कैपेसिटी. एनएरोबिक कैपेसिटी की उनको जरूरत नहीं है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्स. सो दिस विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. उनका मेडिकल एक्सपेंसेस डेफिनेटली कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुद के प्रति देखने का नजरिया बढ़ता है.
Sir, so that we can translate into a layman's language ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ पाए. Can you just जी जी. suggest some particular activities जो कर सकते हैं to achieve the goals you just told us about? अब देखिए जो घर में है, आई मीन जो घर पे जो काम में है, जैसे हाउस वाइफ्स है, उन्होंने घर पे, मेरे ख्याल से तो मैं सबसे बेस्ट जो सजेस्ट करता हूँ, डांसिंग इज द बेस्ट एक्टिविटी. Okay. Hmm. आप घर में टीवी लगा लो, Hmm. अपने घर के कर्टन बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो और बढ़िया डांस करो, जो आपको लगता है, जो आपका पसंद डांस. That's लेकिन good. ऑफ कोर्स प्रिंसिपल वही फॉलो करना है, इंटेंसिटी कम रखनी है. अगर आपको नी की प्रॉब्लम है, बैक की प्रॉब्लम है, एंकल की प्रॉब्लम है, वेट ज़्यादा है, तो आप बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे आप शुरू करो, जब तक आपके मसल्स टोन अप नहीं हो जाते हैं. थोड़ा उसमें बेसिकली वार्म अप इज एसेंशियल, Hmm. हेड टू टो. आई मीन वार्म अप हमेशा हेड टू टो होगा, सारे बॉडी मसल्स को आप रिलैक्स करो, ब्लड सर्कुलेशन होगा, या मसल्स आर रेडी, बॉडी इज रेडी. आप ग्रेजुअली वार्म अप करो, Hmm. आप डांस करो, Hmm. एरोबिक डांस करो, और उसके बाद में ईमानदारी से 15 से 20 मिनट लिम्बरिंग डाउन एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, सो दैट योर बॉडी टेम्परेचर कम्स डाउन टू द नॉर्मल कंडीशन, और आपको इंजुरी नहीं होगी, आप नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हो. दूसरा, आप योगा कर सकते हो, आप वॉकिंग जाइए, आप साइकिलिंग कीजिए, प्राणायाम कीजिए. बहुत सारी एक्टिविटी है जो आपने करना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स वेराइटी बहुत जरूरी है. आप रोज आप एरोबिक करोगे तो प्रॉब्लम होगी, किसी दिन आप स्ट्रेचिंग कर लो, छोटे घर में डंबल्स लेके आप स्ट्रेंथनिंग करो, आप 1 kg के डंबल्स, 2 kg के डंबल्स, एटलीस्ट मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ रहना जरूरी है, सो दैट आपके जॉइंट्स पे लोड नहीं आएगा. Right. तो स्ट्रेंथ पे भी ध्यान देना जरूरी है, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, बैक स्ट्रेंथ, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, तो आपके नी पे लोड नहीं आएगा, Hmm. राइट. शोल्डर की स्ट्रेंथ, बाइसेप की स्ट्रेंथ, तो आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा. Right. घर में आप डांस करो, आपके हार्ट का ख्याल रखो, लंग्स का ख्याल रखो, और स्ट्रेचिंग करो. दिस इज सफिशिएंट, और करना ही चाहिए 30 to 40 मिनट्स, हफ्ते में 4 से 5 दिन. दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. So, sir, before we conclude this conversation, Ek Samvad with you, please give a message for everyone who's listening. हाँ, I mean, 3 to 4 days in a week, 30 to 40 minutes in a day, you have to devote, I mean, इतना समय आपको देना ही है. उसमें आप एरोबिक एक्टिविटी, मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर एब्डोमेन मसल, बैक, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग एंड शोल्डर मसल्स, एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, ये आपने करना ही चाहिए. दिस विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. Right. So, sir, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, and I think Right, we need definitely, yeah. more experts like you who can guide us. Thank you so much for your time and for being on Ek Samvad at Arunimankuran. It was such a pleasure talking to you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you.